وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو حضرت، میں اپنے محلے کی خاص بات بتا دوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں کے بچے بہت سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار بچے ہیں۔ یہ ایک ہی بار میں بات کو مان لیتے ہیں۔ دیکھو میں دکھاؤں ابھی، یہ بچے جتنے بھی ہیں اٹھ کے آپ اس والی سائڈ میں آ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ ایک ہی بار میں سب اٹھ کے والسلام علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دم درشد متقی مفتی اعظمی زنم، قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دم درشد متقی احمد رضا خامی زنم۔ حضرات محترم، 9:01:55 ہو رہے ہیں، صحیح بتایا؟ 9:01:55 ہو رہے ہیں، اور ٹائم تو بہت زیادہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جلسہ بہت زیادہ نہیں چلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ 10 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، اگر 11 منٹ ہو جائیں دھوکے سے تو کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اسٹیج پہ سے یا نیچے سے۔ میں ٹائم کی بڑی پابندی کرتا ہوں حضرات محترم۔ ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ناظم صاحب بڑے اچھے جاندار اور شاندار اشعار آپ کو سنا رہے تھے۔ لگ تو رہا ہے کہ عمر جو ہے وہ 55 کی ہے، لیکن حوصلہ اور ہمت آج بھی 55 کا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں سب کا تعارف تو بہت چھوٹے وقت میں نہیں کرا سکتا، لیکن میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے اکبر بھائی اور ان کے ساتھ میں جن لوگوں نے بھی امداد کیا ہے، جلسے کو کامیاب بنایا گیا۔ اللہ رب العزت سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا گیا کہ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے گئے، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے گئے کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے گئے، اور کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھتے لیتے ہیں سب لیکن نظر انداز کرتے گئے۔ اور کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے گئے، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے گئے۔ حضرات محترم، ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا گیا کہ کبھی دیوار گرتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار گرتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اتنی خاموشی سے کام نہیں چلے گا، دونوں کو ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ ایک بار علی علی بولیے، علی علی۔ آپ لوگوں کیا نہیں اٹھا سکتے؟ آپ اٹھائیے ذرا، بولیے علی علی۔ شاعر کہتا ہے تصویر کائنات کا آکاش ہے علی۔ حضرت آپ ایک بار داد دے دیں گے تو بس مزہ آ جائے گا۔ تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی۔ اور اے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اور اے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ حفیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ کون سنا یا علی۔ حضرات محترم، یہ تو علی کی بات ہے، لیکن شاعر یہی خاموش نہیں ہوتا گے بلکہ علی کے بیٹے کی بات کہتا گے۔ لوگ یہ سمجھتے گے کہ حسین کی شان کو صرف محرم میں بیان کیا جاتا ہے، صرف محرم کے مہینے میں حسین کی شان میں تقریر ہوگی یا حسین کی شان میں شعر سنائے جائیں گے۔ یار حسین کی شان تو وہ گئے، حسین کی ذات تو وہ گئے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں گئے، 1000 ہو، 1 کروڑ ہو، 1 ارب ہو یا اربوں ہو، ہر جمعے کو مسجد کے اندر ہر خطیب میرے حسین کا نام لیا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے بیٹا علی کا بھلا کیسے ہار جائے گا، بولو سبحان اللہ، بیٹا علی کا بھلا
कैसे हार जाएगा और हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रिआया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रिआया यजीद की, और नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और यही नहीं बल्कि शायर आगे कहता है, अली का बेटा तेवर दिखा के चलता है, अली का बेटा तेवर दिखा के चलता है, और शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है, शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने ये नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने ये नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। हजरात मोहतरम ज्यादा शायरी की तरफ न जाते हुए क्योंकि टाइम कम मिला गया, आपको शानदार तकरीर सुननी गई। मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। अल्लाह फरमाता है वो लोग अगर अपनी जानों पर जुल्म कर दे तो महबूब तुम्हारी बारगाह में आ जाए, फस्तगफिरुल्लाह, और तुम्हारी महबूब तुम्हारी बारगाह में आने के बाद वो अल्लाह से माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और फिर नबी उनकी सिफारिश करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो जरूर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। जलसे का पीछे टाइटल लिखा हुआ है अजमत मुस्तफा कानपुर। थोड़ी सी गुफ्तगू इसी पे करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा की शान को कौन बयान कर सकता है, मेरे मुस्तफा की अजमत को कौन बयान कर सकता है। एक घंटे में नबी की शान बयान नबी हो सकती, एक रात में नबी की शान बयान नबी हो सकती, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में मेरे नबी की शान को कोई बयान नबी कर सकता। इसलिए कि हदीस पाक है आका इरशाद फरमाते हैं, ला यारिफु हकीकती सिवा रब्बी, ये मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो पता ये चला कि हमारी जबान में वो ताकत लगी गई कि मुस्तफा की शान को बयान करे, मुस्तफा की अजमत को बयान करे। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि परवरदिगार आलम ने मेरे मुस्तफा को सारी कायनात का बादशाह बना करके भेजा गया। आप जानते हो किसी को कितनी हुकूमत मिलती गई, किसी को किसी खत्ते की बादशाहत मिलती गई, किसी को एक महल्ले की हुकूमत मिलती गई, किसी को एक शहर की हुकूमत मिलती गई, किसी को एक सूबे की हुकूमत मिलती गई, किसी को एक डिस्ट्रिक्ट की हुकूमत मिलती गई, किसी को एक जिले की हुकूमत मिलती गई, किसी को एक देश की हुकूमत मिलती गई। आप जानते हो जिसको एक महल्ले की हुकूमत मिली उसको मेंबर कहा जाता है, जिसको एक गांव की हुकूमत मिली उसको प्रधान कहा जाता है, जिसको एक तहसील की हुकूमत मिली उसको एमएलए कहा जाता है, जिसको एक जिले की हुकूमत मिली उसको क्या कहा जाता है, एमपी और सांसद कहा जाता है, जिसको एक सूबे की हुकूमत मिलती है उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, जिसको एक देश की हुकूमत मिलती है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। लेकिन प्यारे याद रखो परवरदिगार आलम ने मेरे मुस्तफा के लिए जिसको परवरदिगार आलम ने जमीन और आसमान की हुकूमत देकर भेजा है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। जिसको खुदा ने जमीन और आसमान की हुकूमत अता की है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। यहीं तक नहीं बल्कि मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दो वजीर जमीन में गए और दो वजीर आसमानों में गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फअम्मा वजीर आया मिन अहले समाए व जिब्राइल व मीकाइल, तो मेरे आसमान के वजीरों में हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल गए। व अम्मा वजीर आया मिन अहलिल अर्द, और मेरे जमीन के वजीरों में हजरत अबू बकर उमर गए। तो पता ये चला वजीर किसके होते गए, बादशाह के होते गए, किसी आम इंसान के वजीर नहीं होते गए। और मेरे मुस्तफा कहते गए दो वजीर आसमान में गए, दो वजीर जमीन में गए। तो इससे ये पता चलता गया कि मेरे मुस्तफा की हुकूमत आसमानों पर भी गई, मेरे मुस्तफा की हुकूमत जमीनों पर भी गई। तो पता ये चला पूरी कायनात में मेरे मुस्तफा की हुकूमत ही हुकूमत नजर। और यही तक लगी अपना 2-3 मिनट लेने का इजाजत है। आप लोग तो नहीं थके?
क्योंकि वक्त हजरत का है, मेरा वक्त लगेगा। आप तो मेरी तकरीर बार बार सुनते रहते गए और आपने सुना भी है, हर जुमे को सुनते गए, इंशाअल्लाह इसके बाद में भी सुनेंगे। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा गया। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफा की बड़ी शान है। हमारे ये अकबर भाई इन्होंने टॉपिक दिया था, हजरत टॉपिक का इस वक्त लगी गई कि मैं आपको टॉपिक पे तकलीफ कर सकूं। बस आखिरी बात आपको ये बता देने चाहता हूँ, ये जलसा हमारा सुनना, इस जलसे में बैठना हमारा उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब यहाँ बैठ करके हम अमल करेंगे। मेरे नौजवानों, एक छोटा सा वाकया 3 से 4 या 5 मिनट का आपकी नजर कर रखा हो, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको खासकर बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी के एक वाकया है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, डिग्रियां हासिल करने के लिए जाते हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। और यूनिवर्सिटी का मतलब आप समझते हैं वहाँ हर मजहब का बंदा पढ़ता है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, या ईसाई हो, या गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यूनिवर्सिटी में जाता है। एक नौजवान भी निकला, अपने घर से गया गए, पढ़ने के लिए गया गए, यूनिवर्सिटी में पहुंचा गए, तालीम हासिल करने के लिए पहुंचा गए, इंजीनियर बनने पहुंचा गए, फिर प्रोफेसर बनने पहुंचा गए। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये नबी का मानने वाला था, नबी की मोहब्बत दिल में थी। ये सिर्फ दुनिया की डिग्री लेने नहीं गया था, बल्कि मोहब्बत रसूल भी हासिल करने गया था। नबी के इश्क का चिराग दिल में जलवा करके ये यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचता है। और यूनिवर्सिटी में प्यारे क्या होता है, रातों रात पढ़ाई होती है, दिन में पढ़ाई होती है, रात में पढ़ाई होती है। लेकिन ठंड का मौसम के ये बच्चा क्या उठता है, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। ये नौजवान 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, और सिर्फ 5 वक्त की ही लगी, बल्कि इसके दिल में रसूल की मोहब्बत थी। ये रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता था। एक दिन क्या होता है प्यारे, ये नौजवान उठा गए, उठने के बाद में खड़ा हुआ गए, कमरे से निकला गए, निकलने के बाद में जनवरी का मौसम के ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। ये नौजवान कमरे से बाहर निकला, इसने टोटी खोली गई, टोटी खोलने के बाद में देखता गए कि पानी नहीं आ रहा है, बर्फ बन चुका है, पानी नहीं निकल रहा है। ये सामने देखता गए एक छोटा सा पार्क मौजूद है, पार्क के अंदर जाता गए, वहां पर घास है। इसने सोचा कि घास में जाकर के वजू कर लो। इसके उठने पर इसकी आहट से बराबर के कमरे के 2 बच्चे उठते गए, वो देखते गए, पता नहीं क्यों उठा गए, रात के 3 बज रहे गए, क्या करेगा। एक लड़के ने कहा ये मुसलमान के जरूर कोई आतंक फैलाएगा, आज मुसलमानों को आतंकवादी के नाम से याद किया जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन प्यारे सुनो सुनो, मुसलमान की शान क्या होती है, मुसलमान का मिशन क्या होता है, मुसलमान का तरीका क्या होता है। रात के 3 बजे ये नौजवान निकला गए, पार्क में पहुंचा गए, अपनी आस्तीनों को चलाता गए। अब तो वो दोनों बच्चे कहते गए कि गार्ड को बुलाया जाए, गार्ड को बुलाया जाता गया। इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को भी बुलाया गया और कहा जाता गया ये रात के 3 बजे पार्क में जाकर के क्या करेगा। इतनी ठंड पड़ रही है कि बर्फ पड़ रहा है, टोटी में पानी नहीं आ रहा है, बर्फ पड़ रहा है। लेकिन ये 3 बजे पार्क में उठ के क्या करेगा। किसी ने कहा कि गोली मार दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल कहता है गोली नहीं चलाना, देखते हैं क्या करेगा। कौन सी चीज ने से रात के 3 बजे इतनी ठंड में उठने पर मजबूर किया गया प्यारे। ये रात को इसने अपनी आस्तीनों को चढ़ाया गया, आस्तीनों ऊपर की गई, इतना चढ़ाना शुरू किया गया। किसी ने कहा अब तो ये कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। वो कहता है डांट कहता है सर गोली चला दी जाए। वो कहता है नहीं नहीं गोली चलाने की जरूरत नहीं है, पहले देख ले क्या करेगा, आतंक फैलाएगा या कोई मिशन देगा या कोई तरीका देगा या कोई सबक देगा, क्या देकर के जाएगा। 3 बजे उठा गए, आस्तीनें चढ़ाई गई, उसी घास पर जो ओस जमी थी, ठंडी ठंडी ओस से ये वजू करता गया। और वजू करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह के लिए पाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लाहु अहद, ए महबूब तुम कहते हो अल्लाह एक है। रात की तारीकी में ठंडे मौसम में ये अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहा है, अल्लाह के एक होने का ऐलान कर रहा है। ये खड़ा हो गया और इसने नमाज तहज्जुद पढ़ी गई। तहज्जुद पढ़ने के बाद में इसने अपने हाथों को उठाया गया। तकरीबन 3:30 हो जाते गए। 30 मिनट पर ये अपने हाथों को उठाता गया और कहता गया एक परवरदिगार आलम, मैं घर से निकला था यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए, दुनिया का ओहदा कमाने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मरने के बाद में कब्र के अंदर दुनिया का ओहदा काम नहीं आएगा, बल्कि नमाज का तोहफा काम आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 बजे नमाज को अदा किया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए।
مولا جانتا ہوں انجینئر بننے آیا تھا, پروفیسر کا جذبہ دل میں لے کر کے آیا تھا مولا, لیکن میں جانتا ہوں مرنے کے بعد یہ انجینئر اور پروفیسر کے عہدے کام نہیں آئیں گے. قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نماز کا تحفہ کام آئے گا. اب اس نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیلا کے جب کھڑا ہو جاتا گئے, کھڑا ہونے کے بعد میں وہ 4 لڑکے جو نکلتے ہیں کمرے سے غیر مسلم اس کے قریب آتے گئے, گارڈ بھی آتا گئے, پرنسپل بھی آیا. آنے کے بعد میں پوچھا اے نوجوان ذرا یہ تو بتا دے اتنی رات میں اتنی ٹھنڈ میں اور تجھے بستر سے نکلنے پر کس چیز نے مجبور کیا گے, آخر تو یہ تو بتا دے کہ تو نے وہ کون سا نشہ پیا گے کہ جس نشے نے تجھے رات کی ٹھنڈ میں یہاں آنے پر مجبور کر دیا گے. وہ نوجوان کہتا گے کوئی نشہ نہیں کیا گے بلکہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھا گے. وہ اسی وقت کہتے گئے, وہ نوجوان سے کہتے گئے, وہ 4 لڑکے کہتے گئے, وہ گارڈ کہتا گئے, پرنسپل بھی کہتا گئے اے نوجوان جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا گئے مجھے بھی پڑھا دے. وہ گارڈ بھی پڑھتا گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی گے اندازے گلستان پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ.